song is stunning and you guys look absolutely amazing. Thank you. Was there a conscious thing to recreate something kind of a Govinda Karishma kind of a chemistry? I think I'm going to let Pariniti answer this. Yeah. We'll be very honest. Yes, that was really like that's what we wanted to do. You know, he's very energetic. I have a lot of energy, not as much as him, of course. But I think for him and I to do something in this space seemed to be the best idea. And also, Dishum already has a couple of songs which are, you know, so different in their vibe. So, you know, the third song had to be different and had to be, you know, us, I think. I think we both were a perfect fit for this world. And of course, Ahmed sir, you know, wanted the performance and, you know, the expressions which, of course, we used to see in the 90s. So, yeah, we tried. I don't know if we're going to be killed for it, but we tried our best. It's got a little bit of that 90s का वो theme है, वो धक 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 धक. That beat is like that. And I think Pariniti, me, I think a lot of y'all, we've all grown up on it. हम लोग सब ने सुना है. तो वो पसंद बहुत आता है, वो मतलब मेरे तो खून में है. तो I think वो सुनते ही मैं अपने आप हिलने लगता हूँ हमेशा. या इसको सेट पे कंट्रोल करना पड़ता था क्योंकि मिस्टर वरुण धवन को इम्प्रोवाइजेशंस बहुत पसंद है. एंड मैं सोचती थी कि मैं स्पॉन्टेनियस एक्टर हूँ. What was the improvisation on set? Tell them. You should tell them. You tell them. What happened to you? You just were like dying to. Oh, was that? There's एक छोटी improvisation है इसमें क्योंकि छोटी नहीं है, छोटी इसके हिसाब से. Kiss is a peck. I mean, it's not a kiss. So. Yeah, no, 1 second. I will tell you the story. Please understand. You are not गाना going to say में anything. बोला है कि 2 साल में हो गए तेरे बच्चे मेरे बच्चे में. No. मैं सच बताना चाहती हूँ सबको कि हम लोग 2 दिन हमने रिहर्सल की. हमें लगा यू नो फुल ऑन डांस नंबर है, बहुत मेहनत करनी चाहिए. अब हम सेट पर हैं. मैं वैसे ही बहुत स्ट्रेस्ड हूँ क्योंकि मेरे बॉडी शॉट्स चल रहे हैं. मैंने बहुत कम खाना खाया हुआ था, मैंने पानी नहीं पिया हुआ था. एंड सडनली यहाँ से आवाज आती है कि हम लोग किस करें क्या. व्हाट? नहीं, कहाँ से, क्यों? एंड रोहित वॉज नॉट ऑन सेट. रोहित जैसे ही सेट से निकला, वीडी को ये ब्रेन वेव आया कि मैं आज परिणीति को किस करूं. तो पहले 1-2 टेक्स हमने ट्राई किया कि हम लोग थोड़ा फेक करते हैं, यू नो, हम लोग ऑफ कैमरा चले जाएंगे या ऐसा कुछ. हमने ये मेरे परिणीति ने बोला कि यू कांट डू ऑल दिस इन टुडेज डे एंड एज. इफ यू वांट टू किस देन किस मी फुल ऑन. अभी मैं क्या करूं? आई वाज डाइंग टू किस. भोला लड़का अभी ऐसे कोई बोलेगा तो नहीं तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सब लोग इंक्लूडिंग जो हमारे कोरियोग्राफर थे वो शॉक्ड थे पहले टेक के बाद क्योंकि उनको पता ही नहीं था हम लोग ये करने वाले. सो वी हैड लाइक दिस फुल स्टेप एंड एक 1 शॉट चल रहा था, ब्यूटीफुल रोमांटिक मोमेंट, एंड एट द एंड देयर वाज सडनली अ किस. सो आई थिंक इवन द डांसर्स, अहमद सर, एवरीबॉडी वाज इन शॉक कि ये क्या हुआ. एंड आई हैड टू मेक इट वेरी क्लियर दैट इट वाज हिज आइडिया एंड नॉट माय आइडिया. Vidi, what is the reason that you wanted to kiss me? Please tell everybody. Said in my ear that Varun, this song is, you know, it's a baby making song. Yeah, एक तो कल ट्विटर से मुझे पता चला कि there's so much kissing in this song. Suddenly, I'm biting your ear. But yeah, you've done all this, Pariniti. I was dying to. Yeah. Anyway. Sorry, you all can. Sorry, आप पूछ रहे थे सर. किसका मतलब इतना क्रिएटिव आइडिया भी हो गया और आपका काम भी हो गया. वरुण क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? काम भी हो गया मतलब. What do you say about this, you know? Just joking. I hope you take it on a light note. No, I'm taking it. See, there was a What beat. will you take? I have taken it. Of course you have to. There was that dhadadun. तो मेरे को लगा वो पहले dhadadun पे ऐसा होगा dhadadun and then dhadadun. ऐसा. And then dhadadun. ऐसा. And then dhadadun. ऐसा. नहीं हमने. नहीं हुआ. करेंगे बाद में. No, करेंगे. So आप ये सोचो कि मैं भोली बच्ची, मैंने कहा ढडन ये पोज होगा इनमें. बट ढडन में क्या कुछ हो गया है, मतलब मैं क्या कहूँ अभी. But I think it was really cool. I also agreed with the idea. So Creative idea. it takes two. Sorry, Yeah. It takes. देखिए, जो आतंकवाद फैलाते हैं और जो लोग आतंकवाद करते हैं उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं होता, ये मेरा मानना है. फिर वो किसी भी मजहब के हों, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जो लोग लोगों को मारते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है.